So these were the objections. That's why the whole world was, divided, that whether Lamarck's theory of inheritance of acquired characters is correct or not. At the same time, Lamarck ने एक दूसरी theory दी, erase कर दूं? Yes, sir. Obviously. Okay. At the same time, Lamarck ने एक और theory दी. Note कर लिया आपने सारा? Yes, sir. Okay. Okay. At the same time, Lamarck ने एक और theory दी. उस theory का नाम था theory of use and disuse of organs. ये theory भी अपने आप में बहुत important थी. एंड इस थ्योरी का बहुत सिंपल सा मतलब था, जो आज भी ये थ्योरी पूरी तरीके से सही मानी जाती है. इस थ्योरी में लमार्क ने ये कहा, दिस वाज गिवन इन द सेम बुक फिलोसॉफी जूलॉजी इन द सेम ईयर 1809. But what he said was very important. He said, you can write it down, the organ which is used more, according to this theory, the organ which is used more becomes more developed, whereas the organ which is used less, becomes underdeveloped. Sir, please repeat. Sir, please repeat. मैं repeat कर रहा हूँ बेटा. Yes, बेटा. The organ which is used more. Yes, sir. The organ which is used more becomes more developed, but the organ which is used less becomes underdeveloped. The organ which is used less becomes underdeveloped. हो गया? मतलब Yes, जिस sir. organ को हम ज्यादा यूज करेंगे वो ज्यादा डेवलप हो जाएगा, जिस ऑर्गन को हम कम यूज करेंगे वो अंडर डेवलप्ड हो जाएगा. Yes, sir. Clear? Done? Yes, done, sir. You want me to repeat or is it fine? Fine, sir. Okay. तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी. अब इसका एक एग्जांपल देता हूँ. देखो, whenever a person goes to the gym and he exercises a lot, उसके मसल्स बन जाते हैं, बहुत ज्यादा बन जाते हैं. लेकिन Yes, होता sir. क्या है, अगर किसी बंदे के यहाँ एक्सीडेंट हो जाए और यहाँ पे प्लास्टर लग जाए, तो अगर प्लास्टर लग जाता है और डॉक्टर कह देता है ऐसे हाथ को आप ऐसे रखेंगे, प्लास्टर चढ़ा दिया, तो डॉक्टर कहता है जी आप इसको मूव नहीं करेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू मूव इट फॉर नेक्स्ट 2-3 months. तो क्या होता है, जब वो प्लास्टर कटता है, when that plaster is removed, तो when the muscles are observed, those muscles turn to be very weak. होता है या नहीं? Yes, sir. होता है. तो इसका मतलब उस ऑर्गन को जिन लोगों ने ज्यादा यूज किया उनके में डेवलप हो गया. क्यों? क्योंकि उन्होंने मसल्स बनाए, डेवलप किया, Yes, एक्सरसाइज sir. किया. लेकिन जिन्होंने यूज नहीं किया उनमें मसल्स वीक हो गए. लिखो एग्जांपल मसल्स. When they are used more, they become developed, and when they are used less, they become underdeveloped. Underdeveloped. Now, there is one thing which I would like to tell you. इसका एक और example है. There is one more example, and that example is vestigial organs. Vestigial organs. What are these? Can you tell me? What are vestigial organs? क्या होते हैं? Vestigial organs are the organs which were functional in our ancestors, but which are not functional now. लिखो. Vestigial organs are the organs which were functional in our ancestors, but are not functional now. Which were functional in our ancestors, but are not functional now. इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारे एंसेस्टर्स में फंक्शनल थे लेकिन हम में फंक्शनल नहीं है. हम में फंक्शनल नहीं है. एनी डाउट? नो सर. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारे एंसेस्टर्स में फंक्शनल थे तो हमें फंक्शनल क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इनको यूज करना बंद कर दिया. अब मैं तुम्हें वापस लेके चल रहा हूं तुम्हारे क्लास 11th में. तुमने पढ़ा होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी में. यस सर. ह्यूमन फिजियोलॉजी में तुमने पढ़ा होगा डेंटल फॉर्मूला. यस सर. व्हाट इज योर डेंटल फॉर्मूला? टेल मी द डेंटल फॉर्मूला ऑफ Anisha. How many teeth we have, Anisha? Let me tell you. Oh, you yes, should sir? tell me. Okay. Just tell me. आप ये बताइए कि कितनी टीथ है हमारे पास. क्लास के बाद एक बार काउंट करके देख लेना टंग को यूज करके. You can count it like this or you can count it with your hand also. पहले तो लिख लो नंबर ऑफ टीथ कौन कौन से हैं. पहले लिखो इंसाइजर्स. These are the teeth which are present in human beings. Incisors, canines, premolars. Molars. Yes, and the last is molars.
the last is molars. So ये जो चार तरह के टीथ हैं ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो इनकी अगर हम बात करें तो इंसाइजर्स कौन से होते हैं? ये वाले आगे वाले. Sir, फिर ये जो yes, sir. स्पाइनी जो है ये वाले, these are canines, Yes, then sir. premolars and then molars. And you have to understand that, see, we have two jaws. This is upper jaw and this is lower jaw. ठीक है? Yes, sir. Upper jaw में दो halves हैं. This is one half and this is one half. Yes, sir. Lower jaw में there are two halves, one half and the other half. And other So this dental formula represents one half of upper jaw upon one half of lower jaw. one of lower jaw. ठीक है? 2 by 2, हाँ बताओ बताओ. 2 by I 2 by 2, C 1 by 1, P 2 by 2, M 3 by 3. गलत. Absolutely wrong. कोई शक ही नहीं. पूरी तरह wrong है. 2 1 2 2. Yes, this is your dental. 2 1 2 2. ये तुम्हारा dental formula है. लिख लो. The question आया हुआ है नीट में. The dental formula of a human teenager is. Why I asked about you? Because you are representing teenagers. Write it down. Yes, sir. The dental formula of a human teenager is 2 1 2 2 upon 2 1 2. Yes, sir. So this 2 is representing incisors. This 1 is representing canines. This 2 is representing Premolars. premolars and the last 2 is representing Molars. molars. Is it fine? Done? And as Yes, I sir, told done. you, the dental formula is represented by the numerator represents what? One half of what? Upper jaw. The denominator represents one half of lower jaw. So this has to be multiplied by 2 upon 2. Is it fine? Yes, sir. Fine. लेकिन ये मैथमेटिक्स नहीं है कि आप 2 और 2 कैंसिल कर दोगे. If you do that, what will happen? दांत टूट जाएंगे आपके. दांत कम हो जाएंगे. No, sir. अरे भाई तुम 2 और 2 कैंसिल कर दोगे तो क्या रहेगा? दांत ही नहीं बचेंगे ना. That नहीं, sir. Isn't it? Is that clear? So 2 1 2 2 upon 2 1 2 2. So into 2 and into 2 ये जो है, this is understood. There is no need Yes, of writing this. In the dental formula, there is no need of writing this. So dental formula में सिर्फ इतना लिखा जाता है. Just remember this. 2 1 2 2 upon 2 1 2 2. So write it down. This is the dental formula of a teenager. Human teenager. अगर नीट में Yes, क्वेश्चन sir. आया, write the dental formula of a human teenager, तो ये लिखोगी. और अगर क्वेश्चन आया कि dental formula बताइए एक बच्चे का, क्या लिखोगे? मालूम है? Sir, 2 1. बोलो बोलो जल्दी बोलो. Yes, sir. 2 1 2 1 2. गलत है. 2102 upon 2102. Try to understand this. Sir, 2 1 2 0. ना गलत है. This is given in as an option in the question. जब भी आप नीट वाला पेपर्स देखोगे previous year papers का, you will see that. Yes, sir. But option में आप आंसर चेक कर लेना. आंसर यही है. 2102 upon 2102. Wow, what is this now? Okay, sir. बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता. ये याद रखना. Yes. ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है. Which of the following teeth is not present in human child? तो उसमें ऑप्शंस दिए थे यही चारों. Incisors, canines, premolars and molars. And the answer Yes, is sir. premolars. ठीक है? इसमें भी this is understood कि this would be multiplied by 2 and 2. लेकिन dental formula में ये 2 और 2 नहीं लिखा जाता. ये आपको पता ही है. Dental Yes, sir. formula में हम ये 2 और 2 नहीं लिखते हैं. This is understood कि ये Yes, sir. 1/2 represent कर रहा है, तो 1/2 के हिसाब से यहाँ भी 2 होगा और यहाँ भी 2 होगा. लेकिन dental formula में सिर्फ इतना लिखा जाता है. Is it clear? Yes, sir. तो मुझे बताओ तुम्हारे अंदर कितने teeth हैं? 2 plus 1 plus 2 plus 2 कितने हुए? 7. 7 into 2 7 2. My 14. 14. ऊपर 14 और नीचे भी 14 है. चेक कर लो. 14. Yes, sir. Whereas in case of a child, 2 1 0 2 2 plus 1 0, 3 3 plus 3, 0 3 2. plus 2 5 5 into 2 10 ऊपर और 10 10. 10 नीचे. Is that clear? Yes, sir. Okay. Now, अब मेरा सवाल यहाँ पे लिख लेना dental formula of a child. Now, the dental formula of an adult. Adult में यानी suppose मेरे में या किसी भी adult में आपके mother या father में या कोई भी human adult हो,
उसका डेंटल फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है. जो तुम बता रही थी वो 2 डेंटल 1 2 फॉर्मूला है 3. ऑफ ह्यूमन एडल्ट. यस, 2 1 2 3. राइट इट डाउन. So that is equal to 2 1 2 3 upon 2 1 2 3. Is it fine? Any doubt? So this is very very important. 2 1 2 3 upon 2 1 2 3. Again into 2 होगा. 2 plus 1 would be 3. 3 plus 2 will be 5. 5 plus 3 will be 8. 8 into 2. 8. ऊपर 8 into 2 यानी 16. 16. नीचे भी 8 into 2. चेक कर 16. लो भाई 8 है 16 यानी 32. इसीलिए कहते हैं ह्यूमन बींग्स में 32 टीथ होते हैं. Yes, कहते हैं ना sir. हिंदी में कहते हैं 32. कोई ज्यादा हंस रहा होता तो कहते हैं 32 दिखा रहा है. 32 यही है. 32. Yes, sir. ठीक है. नाउ into 2 लिख लेना बेटा. दिस इज द डेंटल फार्मूला ऑफ अ ह्यूमन एडल्ट. तो ह्यूमन एडल्ट में ऐसा क्या है जो बाकियों में नहीं है या टीनेजर के पास नहीं है, जो तुम्हारे पास नहीं है मेरे पास है? बताओ क्या है? विजडम टूथ. Sir, molar, premolar. लास्ट मोलर. दिस मोलर इज एक्स्ट्रा. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. Yes, दिस sir. लास्ट मोलर जो कि यहाँ पे तुम्हारे में क्या था 2 1 2 2 और मेरे में क्या है Yes, 2 sir. 1 2 3. सो दिस लास्ट मोलर इज इंपॉर्टेंट. This last molar is called as, लिखो इसको. This is the last molar and this is called as wisdom tooth. This is called as wisdom tooth. मुझे एक चीज बताओ, wisdom का मतलब क्या होता है? It is related with intelligence and knowledge, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. So in reality, this tooth, is it responsible for wisdom? No, not at all. But why the layman Yes. calls it as wisdom tooth? Because this appears in an Because, sir, age. Yes. Tell it to me. Tell me. because sir, in this time, people is mentally No, not fully mature. fully formed. Yes, The person sir. is mature. This Yes, appears sir. at the age of 20 to 21 years. And जब ये आता है पेन बहुत होता है. चार आएंगे. देखो एक इधर क्योंकि 1/2 का है ना ये. This is representing 1/2 of upper jaw upon 1/2 of lower jaw. So it will be 1 here, 1 here, 1 here, and 1 here. So Yes, sir. try to remember this, that this is, you know, the last molar. This is the wisdom tooth. So the number of wisdom tooth is 4, but it has nothing to do with wisdom. इसका बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है. अकल दाढ़ बोलते हैं इसको हिंदी में, लेकिन इसका कोई लेना देना नहीं है. Why? Because किसी किसी के आती ही नहीं कभी कभी. किसी किसी के एक भी नहीं आती चार में से. किसी किसी के 2 आती हैं. तो इसका मतलब क्या आधी अकल आई? और No, किसी sir. किसी के एक ही आई तो क्या क्वार्टर अकल आई? No, it has nothing to do with wisdom. Is it fine? So this is an example of a vestigial organ. Vestigial organ कर रहे थे ना हम अभी. Theory of use Yes, and sir. disuse of organs का एक example क्या था? Muscles. दूसरा example क्या था? Yes, sir. Vestigial organs. तो wisdom Yes, tooth, sir. write it down. Wisdom tooth is a vestigial organ. Okay, sir. मैंने क्या बताया? Vestigial organ is an organ which was functional in our ancestors but which is not functional now. अब लिखो दूसरा vestigial organ. Sir, Large canines. appendix भी होगा ना? होगा. Appendix PC में आता है. Vermiform appendix. ठीक है. Large canines. तो appendix के बारे में we'll talk in the next class. Or if you want, we can talk it in this class as well. Example तो लिखी लो. Vermiform appendix. Vermiform appendix. तो ध्यान से देखो कि अगर हम लास्ट मोलर की बात करें विजडम टूथ की, तो विजडम टूथ इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन. लार्ज कैनाइन्स आर आल्सो वेस्टिजियल ऑर्गन्स. यू माइट हैव सीन कि कुछ लोगों के ये कैनाइन लंबा होता है काज काफी, लेकिन वो काफी मतलब ये मान लो कि 100 150 200 लोगों में किसी एक का होता होगा. लेकिन ऐसा पहले हम सब में होता था, लेकिन अब इसका कोई फंक्शन नहीं रह Yes. गया. अब कई लोगों में लार्ज कैनाइन होता ही नहीं ज्यादातर में. क्यों? क्योंकि इसका फंक्शन क्या था पहले? रॉ खाते थे लेकिन सब्जी वब्जी नहीं होता था पहले. पहले इंसान क्या करता था? पहले when we used to live in nomadic life, हम ग्रुप्स में मूव करते थे और ग्रुप्स में जो एनिमल मिलता था उसको उठाया और ऐसे खा लेते थे. तो ऐसे खाने के लिए विजडम टूथ भी चाहिए था और लार्ज कैनाइन्स चाहिए थे फॉर टीयरिंग ऑफ द फ्लेश. तुमने देखा Yes, होगा sir. कार्निवोरस एनिमल्स को, लाइक टाइगर का देखोगे कार्नेशियल टूथ है, डॉग का कार्नेशियल टूथ है, लॉयन का कार्नेशियल टूथ है, कैट का कार्नेशियल टूथ है, बड़ा सा नुकीला सा. इसी तरह लार्ज कैनाइन्स भी फंक्शन करता था और विजडम टूथ होल्ड करने के लिए फंक्शन करता था. ऐसे कच्चे कुछ रॉक मटेरियल को चबा के खाते थे हम. बट लेटर ऑन फायर वाज डिस्कवर्ड एंड व्हेन फायर वाज डिस्कवर्ड, फायर के 3 यूजेस निकले बहुत इंपॉर्टेंट. एक, गर्मी लगने लगी तो इंसान फायर को जला के वार्मथ लेने लगा. सॉरी, ठंड लगने लगी तो इंसान Yes. फायर को जला के वार्मथ लेने लगा. दूसरा, दे यूज्ड फायर फॉर स्केयरिंग द एनिमल्स, जानवरों को डराने के लिए, क्योंकि नोमैडिक लाइफ में हम जंगलों में रहते थे. और तीसरा और sir. सबसे इंपॉर्टेंट, we started using the fire for cooking the food, and when the food was cooked, the food became softer, and when the food became softer,
आज की डेट में हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, इवन नॉन वेज भी जो खाते हैं वो पका के खाते हैं, इतना सॉफ्ट होता है कि आराम से ऐसे ऐसे करके खाते हैं, जरूरत ही नहीं विजडम Yes, sir. आज के ना इसकी। इसलिए दोनों अब क्या हो गए, दे हैव बिकम नॉन फंक्शनल। यही तो लेमार्क ने कहा था। लेमार्क Yes, की sir. जो दूसरी थ्योरी है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। उसमें इसने यही कहा था, द ऑर्गन व्हिच इज यूज्ड मोर बिकम्स मोर डेवलप्ड एंड द ऑर्गन व्हिच इज यूज्ड लेस बिकम्स अंडर डेवलप्ड। इज इट फाइन? एनी डाउट अनिशा? No, sir. No, sir. फंक्शन लिख लो, इसका पहले क्या था? इज इट क्लियर? Yes, sir. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स तुमने कहा ये सीकम के पास होता है। सीकम के पास होता है जहां इलियम जुड़ता है, इलियम में डाइजेशन होता है, कंप्लीट हो जाता है। सीकम में कोई डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता, डाइजेशन पहले कंप्लीट हो चुका है। सीकम में कोलोन, सीकम और रेक्टम, दीज आर पार्ट्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। सीकम के पास एक छोटा सा वर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। पहले इसका क्या फंक्शन था? ये सेल्यूलोज डाइजेशन में हेल्प करता था। Yes, पहले sir. अगर भूख लगे और एनिमल्स नहीं मिलते थे तो लोग पेड़ों पे जो पत्ते होते थे वो खा लेते थे। So that contains cellulose. That contains cellulose. But what happened was later on, cellulose digesting microorganisms होते थे अपेंडिक्स में, लेकिन अब हम खा ही नहीं सकते। वो आज की डेट में अगर तुम्हें भूख लगे एंड योर मदर सेज कि जा बेटा ये पत्ते खा ले आम के, खा लोगी? No, No. sir. क्योंकि हमारी फीडिंग हैबिट चेंज हो चुकी है बिकॉज ऑफ फायर। जब फायर की डिस्कवरी हुई, धीरे धीरे इंसान ने खाना पकाना शुरू कर दिया, तो फूड, सॉफ्ट फूड की आदत हो गई, फिर टेस्टी फूड की आदत हो गई, धीरे धीरे मसाले डलने लगे, सब कुछ होने लगा। दैट इज अ पार्ट ऑफ कल्चरल इवोल्यूशन, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। इज इट फाइन? Yes, sir. अब तो किसी किसी में अपेंडिक्स में अगर प्रॉब्लम हो जाती है, अपेंडिसाइटिस हो जाता है। अपेंडिसाइटिस इज व्हाट? आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास। आइटिस सफिक्स किसी भी वर्ड के आगे लगाओगे, इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, दैट इज स्वोलन, सूजन। तो अपेंडिसाइटिस मतलब Yes, sir. इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स, यानी सूजन हो जाना। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, डॉक्टरी भाषा में इसको हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। तो डॉक्टर सीधे Yes, कहता है sir. जी अपेंडिसाइटेक्टोमी कर दो। डॉक्टर सेज गो फॉर अपेंडिसाइटेक्टोमी, दैट इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स। पेशेंट पूछता है कुछ Yes, होगा sir. क्या? कुछ नहीं होगा जी, क्योंकि it is a vestigial organ. It was functional in our ancestors, but it is not functional now. Similarly, we have nictitating membranes. Similarly, we have what is called as your ear pinna muscle. This is not functional now. So all this thing we'll No. discuss in the next class, along with the vestigial organs present in other animals like snakes and horse as well. Okay, अब तक sir. की क्लास में कुछ भी तुम्हें कोई डाउट हो तो पूछ। No, sir. कोई डाउट नहीं है. इजी लगा? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. Did you get the concept? Yes, sir. Okay, beta. So that's it for today. I think. Thank you, beta.